اگر روزگار ہے تو وہ منرلز میں ہے کہ یہ حادثات جو کول مائن میں آئے روز ہو رہے ہیں، سالانہ یہ 300 سے ابو فوت ہو جاتے ہیں اور 3000 سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ جو اپاہج لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ EBI کی پینشن کا حقدار ہے اور نہ متعلقہ کمپنی اس کو منیمم ویج کے برابر پیسے دے رہے ہیں۔ سوشل سیکورٹی سے تو ویسی مائنز ورکر محروم ہے۔ DG منرل بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے نہیں، اور جب تک ہم دلچسپی نہیں لیں گے یہ ورکر ایسی ہی مرتے جائیں گے کہ حادثے سے پہلے اگر ایک مائنز OSH کے قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کو سیل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مائنز کنٹریبیوشن نہیں دے رہا ہے EBI کی اور ورکر ویلفیئر فنڈ کی، تو اس کی الاٹمنٹ منسوخ ہونا چاہیے۔ مائنز اونر کو چاہیے کہ وہ اپنے مائنز کو قانون کے مطابق بنائے۔ پاکستان ان فوکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل موجود ہیں، تو آئیے ان سے مائننگ کے حوالے سے ان سے گفتگو کا آغاز کریں۔ لالا سلطان، جنرل پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن۔ اس وقت اس ملک میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر روزگار ہے تو وہ منرلز میں ہے۔ کول ہے، کروم ہے، ماربل ہے، جپسم ہے، سونا ہے، مختلف معدنیات ہے اس ملک میں جس سے یہ ملک مالا مال ہے اور اس میں کام ہو رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ اس میں سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے کوئی انتظام نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی ٹیم ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ یہ حادثات جو کول مائن میں آئے روز ہو رہے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس پہ کام کیا جائے، وہ نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹوں پہ چھوڑا گیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کا جو آپ لوگ یقین کریں، جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں انہوں نے کبھی 10 فٹ وہ نیچے نہیں گئے، وہ ڈرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اب جو ورکر کام کر رہے ہیں اور جو حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، جس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سالانہ یہ 300 سے ابو فوت ہو جاتے ہیں اور 3000 سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو یہی ڈیتھ گرانٹ اور کمپنسیشن دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے خاندان کو نہ منیمم ویج مل رہا ہے، نہ EBI کا کوئی وہ جو پینشن ہے وہ مل رہی ہے، اور جو لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں وہ بھی گھر میں چارپائیوں پہ پڑے رہتے ہیں، نہ گھر کے لیے کوئی آمدن ہوتا ہے، نہ متعلقہ کمپنی جس میں وہ اپاہج ہو چکا ہے وہ کمپنی کچھ دے رہی ہے، نہ مائنز ڈپارٹمنٹ کچھ دے رہا ہے۔ آخر یہ سسٹم، اس طرح کا سسٹم یہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹیم ہونا چاہیے جو اس صورتحال کو کنٹرول کرے۔ پڑھے لکھے بچے جو ہے ابھی جو سندھ میں اس دن لاکڑا میں مر گئے، پڑھے لکھے 16 17 سال کے پیارے پیارے بچے ہیں، اور اسکول کی چھٹیوں میں وہ آ کر کے وہاں کام شروع کر دیا اور ان کے خاندان کو کچھ ملنے کی بجائے وہ شہید ہو گئے، فوت ہوئے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک علیحدہ ٹیم بنائے۔ یہ جو روایتی ٹیمیں ہیں، روایتی ٹیموں نے کام نہیں کرنا ہے۔ بدقسمتی ایک اور دیکھ لے کہ 3 مہینے کے لیے سیکرٹری لیبر آتا ہے، 3 مہینے کے لیے مائن سیکرٹری آتا ہے، اور جب وہ آ جاتے ہیں کچھ سیکھنے لگتے ہیں تو دوبارہ ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ پیچھے جو ہے وہ طاقتور لوگ پھر وہ آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اور یہ پریکٹس عرصے سے یہ چل رہا ہے۔ جب تک یہ پریکٹس ختم نہیں ہوگا یہ حادثات چلتے رہیں گے۔ اس پہ انٹرنیشنل تنظیموں نے بہت زیادہ ہماری مدد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فیڈریشن نے بھی اس مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی جدوجہد کی ہے، اور
जब यूबीआई में ये कानून था कि 10 साल काम करने के बाद वो पेंशन का हकदार हो जाता था। जब 55 साल पूरे हो जाते थे तो माइंस वर्कर जो था वो पेंशन का हकदार हो जाता था। लेकिन बदकिस्मती जो लोग अब मेंबरान बने हैं उनकी मौजूदगी में ये फैसला हुआ कि 15 साल वो काम करेगा और 60 साल की उम्र में उसको पेंशन मिलेगी। ये तबाही है। इसके अलावा जो अपाहिज लोग घरों में पड़े हुए हैं न वो यूबीआई की पेंशन का हकदार है और न मुतल्लिका कंपनी उसको मिनिमम वेज के बराबर पैसे दे रहे हैं और जिस काम करने की वो काबिल है उतना काम भी उससे लिया जाए। लेकिन ये सब कुछ गवर्नमेंट को ही करना है। और ये जब हमारे पास पीसीएमएलएफ एपीएलएफ के पास जब गवर्निंग बॉडी थी तो हमने 4-6 चीजें करवा दिए थे, जिसमें एक तो हमने ये करवाया कि कोई भी माइन में हादसा होता है तो उसके लिए यूबीआई के कार्ड का होना जरूरी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी से तो वैसे माइंस वर्कर महरूम है, वहां कोई सोशल सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने उनको ये कहा कि अगर एक हफ्ता पहले वर्कर आ जाता है माइन में और हफ्ते के बाद मर जाता है तो उसके खानदान को डेथ ग्रांट नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो यूबीआई में रजिस्टर नहीं। फिर उस वक्त इन्होंने ये मेहरबानी की। अब कंपनसेशन है, कंपनसेशन पाकिस्तान में 5 लाख, पंजाब में और सिंध में 5 लाख, बलूचिस्तान में 2 लाख और केपी में 3 लाख। फिर हमने जदोजहद की, अब बलूचिस्तान में भी 5 लाख कंपनसेशन है। वो सिर्फ माइंस नहीं, जहां भी वर्कर मर जाए। लेकिन केपी में अब तक 3 लाख चल रहा है। ये देखिए मुख्तलिफ चीजें ऐसी है जो मरकजी सतह पे इसको सोचना चाहिए। अभी डीजी मिनरल बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, उसको इन चीजों से दिलचस्पी है नहीं। बदकिस्मती देखे हम इस तरह की कौम है कि जो हमारी फील्ड है, जिसके बदले हम तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसके बदले हमारे बंगले हैं, जिसके बदले हमारी गाड़ियां हैं, जिसके बदले हमारे पैसे हैं, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और जब तक हम दिलचस्पी नहीं लेंगे ये वर्कर ऐसी ही मरते जाएंगे। अब एक चीज और है कि हमारे माइंड में एक अच्छा खासा परसेंटेज सर्दियों के दिनों में अफगान वर्कर का होता है। अब जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ है कि अफगान वर्कर यहाँ नहीं रहेगा, जबकि वो फॉर टाइम बीइंग आते हैं, फॉरएवर नहीं आते हैं। न वो इस तरह के महाजर है कि वो आए बच्चों के साथ और फिर नहीं, वो अकेले आते हैं, काम करके वापस 3 महीने 4 महीने के बाद वापस चले जाए। हमने उन पे पाबंदी लगा दी। अब जब हमने उन पे पाबंदी लगा दी तो जो माइन में जो काम हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है, ये 50% जो है ये खत्म हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि मिनरल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट हो और वो डिपार्टमेंट इन सब चीजों को समझ रहा हो, और जो चीजें उनकी समझ में नहीं आती है, फेडरेशन का मतलब यही है कि उनके साथ अकल शरीक करते हैं और उनको बता देते हैं डीजी माइंस वगैरह वो ठीक लोग नहीं है। वो लोगों को वो जो है माइंस अलॉट कर रहे हैं बगैर किसी शर्त शरायत के। शर्त ये होना चाहिए कि आप जो है तमाम वर्कर जो काम कर रहा है उनकी रजिस्ट्रेशन यूबीआई में करना चाहिए। वो ये नहीं कर रहे हैं और उनकी बाकायदगी से हाजिरी होनी चाहिए, वो हाजिरी नहीं लेते हैं। और इस तरह जो अगर हादसात होते हैं और उस माइंस का कसूर होता है तो वो माइंस को 40,000 50,000 जुर्माना कर लेते हैं और 4, 6, 8, 10 लाख अपने लिए ले लेते हैं और दोबारा वो बरी जिम्मा हो जाता है। जबकि फेडरेशन की डिमांड ये है कि हादसे से पहले अगर एक माइन वो एसएच के कानून के मुताबिक नहीं है तो उसको सील करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई माइंस कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है यूबीआई की और वर्कर वेलफेयर फंड की, तो उसकी अलॉटमेंट मंसूख होना चाहिए। ये सब चीजें जब तक नहीं होगी
उस वक्त तक जो है वर्कर ख्वार रहेगा, तबाह रहेगा। और इसके लिए फेडरेशन अपनी जद्दोजहद फेडरेशन ने जारी रखी हुई है। हमने बहुत सी चीजें इसमें गवर्नमेंट के हाथ से हो चुकी है। अब डेथ ग्रांट है उन्होंने बढ़ा दिया है और कंपनसेशन कम जा रहा है, इन पे भी काम होना चाहिए ताकि कंपनसेशन जो है वो डेथ ग्रांट के बराबर आ जाए। और इससे और दूसरी बात, जो वर्कर अपाहिज हो जाते हैं उनको कंपनी जो है मिनिमम वेज दे उसकी जिंदगी तक, और उसकी जिंदगी के बाद 15 साल मजीद उसके बच्चों के लिए, और यूबीआई से पेंशन होना चाहिए, और माइंस डिपार्टमेंट से उसके लिए उसके बच्चों के लिए वजीफा होना चाहिए। इस तमाम चीजों पे काम करना चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फेडरेशन इस पे जद्दोजहद जैसी जारी रखी हुई है, मजीद इसमें वसत लाएगी और मजीद इसको जारी रखेगा। कोयले की कानों में हादसात की बुनियादी वजूहात क्या हैं और सालाना कितने जो है कारकुन हैं जो शहीद होते हैं? देखिए, मेन वजूहात इसमें यह है कि कंपनियों ने खुद काम करना छोड़ दिया है और ठेकेदारों के जरिए ये काम कर रहा है। अब जो एसएच का कानून है कि कीकर की लकड़ी इस्तेमाल होनी चाहिए, 5x6 की जो है कम से कम रास्ता बनना चाहिए, और जो मेन हवाई है यानी दूसरा रास्ता जो गैस की इखराज के लिए या वो हादसे की शक्ल में उस रास्ते से निकलने का रास्ता वो नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं होगी उस वक्त तक हादसा जारी रहेंगे। और इसके लिए जो है, जो जैसे मैंने कहा, ये माइंस ठेकेदार ने नहीं करना है, ठेकेदार का माइंस से कोई वास्ता नहीं, उसका वास्ता है ज्यादा से ज्यादा कोयला निकालने के लिए, और जब ज्यादा से ज्यादा कोयला निकलेगा तो उसकी आमदन ज्यादा होगी। माइंस ओनर को चाहिए कि वो अपने माइंस को कानून के मुताबिक बनाए ताकि उसका माइंस जो है वो लंबे अरसे के लिए कारामद हो, तो मुख्तसर अरसे में वो खत्म ना हो। और अब जो है ये बात में थोड़ी सी वो हो जाएगी, 300 सालाना वर्कर शहीद होते हैं और 3000 वर्कर सालाना अपाहिज हो जाते हैं। इस पे जैसे मैंने गुजारिश की कि एक टीम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बकायदा, ताकि ये जो उनका कानून है उसको भी देखे, और ये जो हादसात है ये हादसात की रोकथाम के लिए भी काम करे, इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी काम करे, यूबीआई के हवाले से भी काम करे। ये जो मुख्तलिफ सिलसिले पड़े हुए हैं इन सब का हल सामने आए। 1923 में माइंस एक्ट बना है, उसमें यह है कि माइंस में हादसा हुआ, पहले 5000 रुपए या 4000 रुपए जुर्माना होता था। अब वो 1923 से 4000 रुपए चल करके अब तक आया है 2023 तक या 22 तक, इन्होंने अभी 40,000 रुपए कर। हम कुछ और कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि माइंस ये नहीं कि माइंस में हादसा हुआ, माइंस वाले का कसूर था, उसकी मैनेजमेंट का कसूर था, जो गैस के चेक करने वाले हैं वो नहीं है, या वो प्रॉपर तरीके से गैसेस की चेकिंग नहीं कर रहे हैं, या सही लकड़ी सहारे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या रास्ता सही नहीं बनाया है, या अल्टरनेट रास्ता नहीं है। तो वो ये चीजें देखने के लिए हमें माइंस एक्ट में तरामीम करनी चाहिए ताकि वो ये देख सके कि ये जो सिलसिला है ये ठीक नहीं है। और इस सिलसिले को ठीक करने के लिए जैसे मैंने गुजारिश की, गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी होनी चाहिए जो चारों सूबों से एक एक दो दो बंदे हो, और ये मरकजी सतह पे होना चाहिए ताकि ये हादसात की रोकथाम हो सके।